जो छोटा सबसे ऊपर दे रखा है यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हियर, तो ये इसका सिलेबस दे रखा है, व्हिच इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, shear force and bending moment. हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? Can you see the screen जो मैंने शेयर किया? Yes, sir. Yes, sir. Shear force and bending moment, differential equations for equilibrium, shear force and bending moment diagrams for statically determinate beams. So this is the topic we have to discuss in this beam chapter. So to have a view of what is beam, you can see different structure first. You can see this is the building in which entire building nowadays are basically built using vertical members which are known as columns, and this horizontal member is known as beam. Similarly, this is an automobile. इसका ये जो chassis है, इसका ये frame, this is the beam. This acts as a beam. Similarly, this is another construction जिसमें कि आप beams का देख सकते हैं कि application हो रहा है. यहाँ पे भी beams है. Beams का ये I cross section shape में है. So this is another machine जिसमें जितने भी horizontal members हैं, ये सारे beam की तरह काम करते हैं. Beam is like this. It's like a structural member which is basically meant for taking bending loads or a load which is perpendicular to its longitudinal axis. So this axis is the longitudinal axis. Once you have this load, so this beam is supposed to bend like this. ठीक है? तो beam is basically considered to be a structural member which offers resistance to bending due to applied load which is normally perpendicular to the longitudinal axis. One of the important criteria for the beam is one of its dimension is larger compared to its cross section dimension. तो beam की अगर आप ध्यान से देखो, ये beam है, इसकी एक dimension, this dimension is very large compared to its cross section. तो इसका cross section होगा, कट करके जो cross section होगा, उससे ज़्यादा बड़ी होगी. And the load is always perpendicular inclined to the longitudinal axis. So, अच्छा, इसके due to this application of load, two major things happens in the beam. One is there is an occurrence of shear force, and other thing is occurrence of bending moment. Shear force leads to shear stresses, and bending moment leads to bending stresses. So that stress part will be on the later part of this syllabus. अभी हम देखेंगे कि where the shear forces are being developed, or along the length of the beam where the shear forces are maximum, where the bending moment is maximum, because corresponding to this shear force and bending moment, the stresses will be maximum. So that is very important for designing of any beam. You can think of a scenario जहाँ पे entire building, actually आजकल जो जितने भी constructions होते हैं ना बेटा, आपके जितने भी high rise towers हैं और buildings हैं, पहले क्या होता था कि जब आप buildings का construction होता था, तो उसमें entire load would have been जितना भी load होता है ना, वो सब walls पे आता, तो उसमें columns और beams का कोई concept नहीं रहता था. आपकी जो आपकी हटकोर बटलर की जो पुरानी बिल्डिंग भी है, उसमें जो walls हैं, walls are very thick, बहुत मोटी-मोटी, क्योंकि entire load is supposed to be coming on this walls. तो आप walls को change नहीं कर सकते. लेकिन अगर आज का कंस्ट्रक्शन देखिए, look at this figure जो मैं ये दिखा रहा हूँ बड़ा, तो अरे कहाँ चला, इसमें आप देखिए, ये आप देखो जितने भी आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब में एक फ्रेमवर्क बन रहा है. वर्टिकल मेंबर्स आर कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आर बीम्स. तो ये पहले आप ये फ्रेमवर्क बना लेते हो और वॉल्स को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, बिकॉज द लोड इज बीइंग बेसिकली टेकन बाय दीस बीम्स एंड कॉलम्स. सो नो लोड इज बीइंग शेयर्ड विद द वॉल्स, ऑल्दो प्रैक्टिकली वॉल्स शेयर करेंगे, बट आप वॉल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. मेजर लोड विल बी टेकन बाय दीस बीम्स एंड कॉलम्स. Are you able to understand this? यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है. अब होता क्या है ना कि बेटा जब आप लोड लगाते हो तो बीम अंडरगोस बेंडिंग. Now अभी हम क्या करेंगे ना, बीम we will be starting with considering beam to be entirely rigid, और इलास्टिक बीम्स भी होती हैं, वो क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बीम्स रिजिड है, तो फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन मींस जहां कहीं पे भी मैं बीम को कट कर दूंगा, two things are going to be happen over there. वहां पे एक तो shear force आएगा, दूसरा बेंडिंग मोमेंट आएगा. ठीक है ना. शेयर फोर्स ऑब्वियसली आपका एक वर्टिकल लोड लग रहा है, तो आपका ऑब्वियसली इसको रेज करने के लिए इसके एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बीम, तो दैट विल बी इन द प्लेन, जो क्रॉस सेक्शन का फेस है उसमें एक फोर्स जनरेट होगा, दैट विल कॉज अ शेयर फोर्स. ठीक है ना. Similarly, चूंकि ये बेंड हो रहा है, because load is distributed along the length of the beam, a moment will be generated
of all the forces acting on the beam to produce shear force and bending moment. यही हम throughout the entire length we try to find out कि at what location of the beam what value is the shear force. कहाँ पे shear force maximum है, कहाँ पे minimum है. Accordingly हम लोग beam में अगर कोई change करना होता change करते हैं. ये डिपेंड करता है कि what type of load is being taken by the beam. ये डिपेंड करता है कि what is the cross section of the beam. ये डिपेंड करता है कि what type of the support of the beam. So first of all we should be knowing what are the different types of the beams. So let us go for the types of beams. तो beams के अगर हम classification की बात करें, so we can see this is one way of classifying the beam. अगर आप if you can see the types of beam लिखा हुआ देख रहे हो? Yes. Yes sir. Yes sir. इसमें जो beam का classification है, beams are basically of two type. One is statically determinate and other one is statically indeterminate. What are statically determinate beams? Statically determinate beams are those beams in which under the externally applied load, if we can find out the reactions at the support using only the equations of equilibrium, then we say this beam is a statically determinate. For those beams in which we cannot find out the reactions, that is unknowns in the beam using only the static equations of equilibrium, then we say this is statically indeterminate. For indeterminate beams, we need to have some additional equations. At that point, deflection equation comes into picture. Deflection अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, strength of material में पढ़ोगे कि कैसे हम लोड लगाने में beams के किसी भी लोकेशन पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है उसको फाइंड आउट करें. At present, we are only concerned with कि एक्सटर्नल लोड लगाने के बाद इंटरनल आपका जो शेयर फोर्स है वो बेंडिंग मोमेंट है वो आपको फाइंड आउट. ठीक है ना. तो आपकी जो बीम्स का मेजर क्लासिफिकेशन है स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट बीम्स. अब स्क्रीन चेंज तो नहीं गई? नो सर. जाएगी, कॉल आ गई थी, एक मिनट भी जाएगी. ये है ना. ठीक है. नाउ अब आप देखो इसमें दे रखा है कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम इज अ सिंपल बीम इन व्हिच वन एंड इज फिक्स. दिस एंड इज फिक्स. इस कोई भी बीम जिसका एक एंड फिक्स है और क्या कहते हैं बाकी उसका बाहर निकला हुआ पोर्शन है, तो आप उस पे लोड लगा रहे हो तो ये कैंटिलीवर बन जाता है. जैसे कि सपोज अगर आपकी किसी वॉल में अगर आप एक रॉड को फिक्स कर दो और बाहर रॉड के ऊपर कुछ आप टांग दो, देन दैट बिकम्स अ कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम. आप समझ रहे हैं? Yes. Then we have a simply ये भी statically determinate beam है. Then we have a simply support beam, simply kept on a simple support. Simple support मतलब कि ये जो supports होंगे ये सिर्फ एक vertical reactions ही देंगे. ठीक है ना. It is like कि आप अपने scale को दो fingers के ऊपर रख दो. अपने एक जो scale है फुटा है उसको आप दो fingers के ऊपर रख दो. Then we'll say this scale is actually acting as a simple supported beam. क्योंकि आपकी जो दो फिंगर्स है वो सिर्फ क्या रेजिस्ट कर रहे हैं, स्केल का नीचे जाना. ठीक है. लोड के अपोजिट में जो लगता है. तो और जितने भी आपके शाफ्ट्स होते हैं जैसे कंप्रेसर का हो गया किसी भी जगह पे, वो बेयरिंग्स में अगर सपोर्टेड है तो बेयरिंग्स के सपोर्ट को हमेशा हम सिंपली सपोर्टेड मानते हैं. देन वी हैव अ ओवरहैंगिंग बीम. ओवरहैंगिंग बीम में देखिए कि आपके सिंपल सपोर्ट से दोनों तरफ निकला हुआ स्ट्रेच है. ये सिंगल ओवरहैंग हो सकता है, डबल ओवरहैंग. तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है दैट इज अ डबल ओवरहैंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस. ठीक है ना. तो ये डबल ओवरहैंगिंग बीम है. तो ये कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग बीम, ये तीनों स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स हैं. तो जितनी भी मैं बीम्स की प्रॉब्लम अभी आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, that will be all including of cantilever, simply supported and overhanging. इन्हीं तीनों को करो. Because जब आप continuous beam में जाते हो, continuous beam is like a bridge है. bridge में continuous support है pillars का. So that is a continuous beam. ये जो beam हो जाती है ये हम कहते हैं statically indeterminate. क्योंकि इसमें जो number of unknowns हैं जो कि reactions आएंगे support पे, वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा यूजिंग स्टैटिक इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है. मिलता नहीं तो एडिशनल इक्वेशन यूज करनी पड़ती है. तो ये आपकी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है जो हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको यू शुड हैव एन आईडिया. कंटीन्यूअस बीम इसे कहते हैं. ठीक है. सिमिलरली दिस इज अ फिक्स्ड बीम. जितने भी डैम्स हैं उनकी एनालिसिस हम फिक्स्ड बीम की तरह करते हैं. मतलब दोनों एंड्स पे हम दोनों पहाड़ों के बीच में अगर आपने डैम बनाया तो दोनों एंड्स को हम फिक्स मान लेते हैं. तो ये फिक्स्ड है. ये भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है. नाउ दिस इज अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर. ये
कैंटिलीवर क्या है, एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पे आपने सिंपल सपोर्ट दे दिया, इसको भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट मानते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर, जिसको हमको फाइंड आउट नहीं कर सकते स्टैटिक इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम इज जीरो, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज जीरो। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Now, beam classification is again based on cross section. अब cross section देखो बेटा, ये आपके beams के जो ये beams है ना, इनका cross section कट करके साइड से देखोगे तो there can be a different types of cross sections. आपका rectangular हो सकता है, square हो सकता है, T shape हो सकता है, I shape. I shape देखो ना, ये यहाँ पे जो use हो रहा है that is an I shape. ये I shape use हो रहा है beam में. Normally constructions में ये I shape use हो रहा है. ठीक है ना, I shape, then triangular section, circular section, then channel section. अच्छा, इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो, this is a type of cross section जिसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो एक्सिस है उसी के प्लेन में लोड लगे, क्योंकि अगर हमारा लोड थोड़ा सा भी शिफ्ट हो जाता है तो then there is every chance of beam not only getting bent but getting twisted also, जो कि हम बीम में नहीं चाहते। We only want कि my beam should, जब आप लोड लगा रहे हो, it should be only bending. अगर ट्विस्टिंग हो जाएगा then additional stresses come into picture, वो हम अवॉइड करते हैं। अगर आपका नहीं हो सकता, कहीं पे आपका क्रॉस सेक्शन आपका नहीं सिमेट्री है, तब हम दूसरा एक मेथड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं टू फाइंड आउट किस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट है। तो जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है दैट इज ऑलवेज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान रखना, हम आगे डिस्कस करेंगे जब आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े बेटा। Yes. Yes, sir. Now, beams are also classified depending upon the radius of curvature. तो radius of curvature के कारण beams are basically of two type. One is straight beam and other one is curved beam. Straight beam, अभी तक आपने ये figures जो देखे थे, that is all straight beams. ये सब straight beam है, ये सब straight beam है। इन सब का radius of curvature क्या है? Infinite. इन सब का radius of curvature क्या है? Infinite. हम लोग यही पढ़ेंगे और आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे कर्व बीम। ये बीम जो हुई आपकी कर्व बीम है, ये बीम जो हुई आपकी कर्व बीम है, ये जो हुक हुआ दैट इज अ कर्व बीम, चेन की जो लिंक होती है दैट इज अ कर्व बीम। सो दीज बीम्स आर बेसिकली बीम्स व्हिच हैव फाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक फाइनाइट है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या कहते हैं फाइनाइट फाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। एप्लीकेशन में तरह तरह की बीम है। अब इसी में जहां पे हुक है, ये ऊपर वाला तो आपका स्ट्रेट बीम हो गया और ये जो हुक है दिस इज कर्व बीम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. उसके बाद क्या होता है कि बीम्स आर आल्सो क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड दे कैरी। तो ये एक मैंने ऐसे बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि पॉइंट लोड है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लोड है हम उसको एक पॉइंट लोड में, सपोज एक आपने वुडन प्लैंक दो एंड्स पे सपोर्टेड है, आपका वुडन प्लैंक जो ईंटे पे रखा हुआ है और उस पे आप खड़े हो जाओ, तो योर वेट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ पॉइंट लोड। लेकिन अगर आप उसी वुडन प्लैंक पे कई सीमेंट की बोरियां रख दो देन दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इक्वल सीमेंट की बोरियां रखी, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, देन दैट इज अ ट्रायंगुलर लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड उसका। सिमिलरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो कि रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं, प्लस ट्रायंगुलर लोड का कॉम्बिनेशन इज अ ट्रेपेजॉइडल लोड। हेलो? Yes, sir. then there could be possibility of point movement. तो हम जितना भी अभी स्टडी करेंगे तो विल बी कंसीडरिंग ओनली दीस लोड्स, और इसका हम अप्रोक्सीमेशन जब लेते हैं, इफेक्टिव फोर्स जो लेते हैं पॉइंट लोड का लोड इटसेल्फ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का हम अगर रेट ऑफ लोडिंग W दे रहे हैं तो W into L, ये तो आप जानते हो मिड स्पैन पे एक्ट करेगा, ये भी जानते हो, और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड मोमेंट का कपल जो लग रहा है उसका वैल्यू विल बी एज सच। ये समझ लेंगे आप? सर ये सेंटर ऑफ मास L/3 हो रही है। हाँ, ये तो हमने कैलकुलेट किया था ना पिछली बार डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, जो फर्स्ट यूनिट पढ़ा था। Yes, sir. यस सर। हमने कैलकुलेट किया था ना कि दिस इज कंसीडर्ड टू बी, जो ये लोड है ये पॉइंट लोड, इट इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू से सम मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज W। तो हम इसका कर रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से कैलकुलेट किया था ना यार? Yes. यस सर।
है और इधर से 2l/3। तो जिधर मेजर ट्राइंगल की मेजर लोड है उधर से l/3 डिस्टेंस पे है, तो इधर से कितने पे होगा 2l/3। तो हमने इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एक इफेक्टिव फोर्स में कन्वर्ट किया, एक सिंगुलर लोड में कन्वर्ट किया कि इफेक्टिव फोर्स विल बी एक्टिंग एट l/3 डिस्टेंस। इसको आप देख लो और इसमें कोई डाउट होता था फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको ऑब्जर्व कर लो बेटा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो आगे। लास्ट वाले फिगर में जो दोनों फिगर है वो उनमें कुछ डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप देखो ना, इसमें क्या है, यू आर सेइंग कि जो हमारा कपल लोड है वो ऐसा इफेक्टिव लोड इज कपल लोड ऐसे ही लगेगा, ठीक है ना, जो कि विच इज नॉट अ पॉइंट लोड, बट व्हेन यू आर टेकिंग अ मोमेंट देन इट विल कंट्रीब्यूट, ठीक है ना। सिमिलरली आप फर्स्ट देखो, जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड इफेक्टिव जो पॉइंट लोड है वहीं पे है, तो सेम लोड विल रिमेन एज सच, लेकिन जहां डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वहां इफेक्टिव लोड कम्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब बेटा मैं अपना स्क्रीन ओपन करूं, आप उस पे अगर आप आ जाओ तो। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। ये जो आपका बीम्स है, बीम्स चैप्टर में हमें क्या करना है, बीम्स में हमें अगर सपोज आई एम कंसीडरिंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द फुटबॉल, इधर एक फुटबॉल है, उनके ऊपर एक बीम को मैंने रख दिया, सो दिस बीम इज अ सिंपली सपोर्टेड। तो मैं मेरे ख्याल से इसमें रिएक्शंस क्या आएंगे, लेट अस से दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी एंड द स्पैन जिसको कि हम कहते हैं इंटायर लेंथ ऑफ द बीम इज एल। लेट अस से अगर मैं कहूं कि क्रॉस सेक्शन इसका क्या है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। जब मैं इस तरह का फिगर ड्रॉ करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, एल को मैं कहूंगा कि स्पैन ऑफ द बीम, दिस इज द बीम, ये बीम है, सो एल इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ दिस बीम, और ये जो डायमेंशन है, लेट अस से मैं इसको कह देता हूं बी, बी इज द विड्थ ऑफ द बीम, टी इज द थिकनेस। तो ये एक क्रॉस सेक्शन है बीम का, तो यानी कि बीम जो है मैं कहीं पे भी कट करूंगा उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, b/t। तो इसका मतलब क्या है, मैं जो बीम अपनी कंसीडर करूंगा एनालिसिस के लिए एज इफ नाउ, आज की डेट में आपके चैप्टर के लिए, आपके यूनिट में, दैट बीम इज ऑलवेज प्रिज्मेटिक। प्रिज्म पिरामिड आपने पढ़ा है ना बेटा? What is prism? What is pyramid? 3D ट्रायंगल शेप होता है, बेटा प्रिज्म में क्रॉस सेक्शन में जब हमने कहा ना, जैसे कॉलम हमारा अगर ब्लॉक है तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिज्म। इसमें क्या थ्रू आउट आपका क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। पिरामिड में इट्स लाइक दिस, है ना, याद आया? यस सर। यस सर। सो हम जो बीम पढ़ेंगे वो प्रिज्मेटिक है। बीम का क्लासिफिकेशन ऐसे भी होता है बेटा, बहुत सारी बीम्स का क्रॉस सेक्शन वेरी करता है अलोंग द लेंथ, लेकिन हम जो भी पढ़ेंगे थ्रू आउट द चैप्टर वो हमेशा प्रिज्मेटिक बीम हो। मैं चाहे बोलूं ना बोलूं, इंटायर बीम विल बी प्रिज्मेटिक। सही है यार? यस सर। यस सर। इज इट ओके विद यू? अच्छा, इस बीम में हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम बीम में लोड लगाते हैं, हमने लोड लगाया, जब सपोज हमने लोड लगा दिया P1 P2, अब इस लोड लगाने के कारण एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, एट डिफरेंट सेक्शंस हमारा शेयर फोर्स क्या जनरेट हो रहा है उसको, लेट अस से दिस इज सेक्शन 11, दिस इज सेक्शन 22, दिस इज सेक्शन 33, दिस इज सेक्शन 44, दिस इज सेक्शन 55, दिस इज सेक्शन 66। हर एक सेक्शन पे शेयर फोर्स क्या हो रहा है हमको उसको फाइंड आउट करना। हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है उसको फाइंड आउट करना। अगर हम इसी शेयर फोर्स के वेरिएशन को, बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को, इफ आई कैन प्लॉट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, then that becomes shear force diagram. Variation of bending moment at different section, if I plot it along the length of the beam, that becomes bending moment
shear force diagram, SFD कह देते हैं, bending moment diagram, so BMD. तो हमको क्या पढ़ना है, एक तो अलग अलग सेक्शन पे shear force क्या है, bending moment क्या है, और फिर हम उसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं along the length of the beam, that is shear force diagram and bending moment diagram. That is what we have to study. Are you okay with this? आगे Yes. बढ़े, ठीक है. अब एक चीज बेटा आप ध्यान रखना, अगर आप सब वो कर रहे हो कि मैं 3 बीम्स जो हम पढ़ेंगे उसमें जो सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे वो क्या आएंगे, हम बात करते हैं. फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम इज व्हाट, वन एंड इज फिक्स, दिस इज वॉल, एक वॉल है, वॉल में ये एंड फिक्स है, और एंड दिस इज द फ्री एंड. तो ये फिक्स एंड होगा, ये फ्री एंड है. फ्री एंड पे आपका कोई भी लोड होगा. लेट अस से मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एक पॉइंट लोड, मैंने यहाँ पे रख दिया. अब फिक्स एंड जब भी होता है इसमें रिएक्शंस आएंगे, और इसके रिएक्शंस को मैं कैसे फ्री बॉडी डायग्राम में वो करूंगा. द रिएक्शंस विल बी, और इस फिक्स एंड को अगर रिप्लेस करना होगा तो आई हैव टू शो, लेट अस से दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, ये बी हो गया. फिक्स एंड में देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन, there will be a horizontal reaction, and there will be a resistive moment reaction. Are you able to understand this? Yes, sir. This is a very important concept because all the softwares like ANSYS, ProE, CATIA, Cosmos, जो भी है, जितने भी हमारे CAD से related जो भी softwares है, when we go for structure analysis, तो उसमें अगर मैंने बोल दिया by definition is कि this is one end is fixed, तो fix का मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर में, कि वहां पे vertical reaction आएगा, horizontal reaction आएगा, और एक resistive moment आएगा. जब आप तीनों को fix कर देंगे, then only your end becomes fixed. Are you able to understand this? Yes, sir. Keep this in mind. यहाँ पे मैंने वर्टिकल लोड लगा रखा था, तो VA की वैल्यू तो P हो जाएगी, लेकिन HA हो सकता है 0. HA 0 है क्योंकि there is no inclination. वर्टिकल लोड लगा तो HA वैल्यू will be 0. है ना यार? Yes, sir. MRA की वैल्यू क्या हो जाएगी? It will be P into L. तो यानी कि वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, कोई वैल्यू एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर मैंने कहा फाइंड द रिएक्शंस, इसका मतलब आपको तीनों रिएक्शंस दिखाने हैं. यू कैन नॉट सिंपली अज्यूम दैट कि सर को तो पता होगा, हम HA को 0 नहीं रखेंगे, दिखाएंगे. इफ यू डू दिस, मैं भी कह दूंगा यार इसको तो पता होगा कि मैं मार्क्स काटूंगा, मैं भी मार्क्स काट दूंगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. You have to show this कि साहब मैंने अगर क्वेश्चन में कह दिया find out the support reaction, then you have to show all these values. इसकी वैल्यू कुछ भी हो यार, you have to mention it. Yes, sir. आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. Similarly, अब सिंपल सपोर्ट की बात मैं करता हूं. ये तो हो गया सिंपल सपोर्ट. सिंपल सपोर्ट में अगर मैंने सपोज एक बीम को ऐसे रखा है, और मैंने ऐसे करके ऐसे करके रखा हुआ, और ये ऐसे करके, ये क्या हुआ? दिस इज अ वुडन प्लैंक और अ बीम केप्ट ऑन अ बॉल और एनी सर्कुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट. दिस इज लाइक कि मैंने एक आपको रोलर सपोर्ट, इसको हम कह देते हैं रोलर सपोर्ट कह दिया. रोलर सपोर्ट में अगर मैंने लोड लगा दिया P, तो यहाँ पे जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बीम का मैं ड्रॉ करूंगा, इट विल बी लाइक दिस. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. तो ये हो जाएगा वर्टिकल लोड P. यहाँ पे देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन. सिंपल सपोर्ट है, एक बॉल के ऊपर रख दिया. दिस इज रोलर सपोर्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. तो यानी कि ये रोलर सपोर्ट विल बी हैविंग ओनली दिस वर्टिकल रिएक्शन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू जो आपका लोड लग रहा है, और ऐसे करके. अच्छा, दूसरा केस कुड बी, मैंने ऐसे करके बीम ली है और मैंने ऐसे करके रखा है. ये जो सिंबल है, दिस इज बेसिकली हिंज सपोर्ट, और यहां पे लोड लगा दिया मैंने P, एंड दिस इज रोलर सपोर्ट. हिंज जब भी आ जाएगा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. हिंज जब भी आ जाएगा तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या दिखाना है? वर्टिकल एट A, हॉरिजॉन्टल एट B.
सो हेलो यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब बस बेटा मुझे आप कहते रहो ना, मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ लैग हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल रिएक्शन इज ऑल्दो HA वैल्यू विल बी 0, इसको हम सिंपल सपोर्ट भी कह सकते हैं बिकॉज ओनली वर्टिकल रिएक्शंस आर देयर। ठीक है ना, लेकिन जब भी मैं हिंज करूंगा तो इसका ऐसे आएगा। सिमिलरली ये सिंबल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके मैं इसको ऐसे करके भी कर दूं, दिस इज ऑल्सो हिंज सपोर्ट, इसका भी यही आएगा। जी सर, आर यू ओके विद दिस? यस सर, यस तो सर। दिस इज ऑल, ये सिंपल सपोर्ट्स रहेंगे, जितनी बीम्स होंगी इसी तरह का सपोर्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमको जो इसमें बीम्स में जो हमको शियर फोर्स फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, उसको कैसे करेंगे। ठीक है ना, सो नेक्स्ट इज फाइंडिंग शियर फोर्स एट अ सेक्शन इन अ बीम। Now there are two important things. आपको अगर shear force find out करना है तो दो चीजें ध्यान रखें। एक तो what is the magnitude and other one is what is the sign convention. So these are the two important things when you have to find a shear force in a beam. Keep this in mind. मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। Let us assume that there is a simply supported beam with a load P acting, let us say at the mid span. To begin with, हम mid span पे लेके चलते हैं, ठीक है ना? और simply supported है, this is A, this is B. Simply supported है मतलब ends पे support होगा. So vertical reaction at A, vertical reaction at B, and the load at the mid span. So it's a simply supported beam. अभी मैं क्रॉस सेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिड स्पैन पे लोड है, टोटल लेंथ जो है बीम की L। अब मुझे किसी एक सेक्शन पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शियर फोर्स एट सेक्शन 1। सेक्शन मतलब मैंने एक कटिंग प्लेन लिया, उसको ऐसे करके कट कर दिया। दिस कटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। तो आपको क्या दिखेगा? आपको एक एक्सिस दिखेगा। साइड में तो ये प्लेन है, बट आपको क्या दिखेगा? एक कटिंग प्लेन दिखाई देगा, एक एक्सिस। ठीक है, अनुज आप बेटा म्यूट करिए अपने को। अब ध्यान दो बेटा, अब पहले हम अननोन्स अपनी तरफ से फाइंड आउट कर लें। पी अगर हमारा मिड स्पैन पे है तो वीए की वैल्यू क्या होगी? P/2। और वीबी की वैल्यू P/2। अब आप एक चीज ध्यान देखो कि चूंकि दिस बीम इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब आपने एक वुडन प्लैंक सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि आपने दो ऐसे करके लकड़ी का फट्टा लिया, उसको आपने दो बोरी पे रख दिया, एक बोरी नंबर 1, बोरी नंबर 2 और लोड लगा दिया P। सो इट इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो P का दोनों रिएक्शन का सम विल बी सेम, VA प्लस VB इक्वल टू P। क्योंकि सिमेट्रिक है तो P/2 P/2 आपने फाइंड आउट। ठीक है, अब आप बेटा ये ध्यान से देखना। अब मुझे यहाँ पे, अब चूंकि होता क्या है कि जब आपका इस तरह का लोड लगता है तो बीम होगा कैसे? बीम दो टेंडेंसी, बीम तो बेंड हो रही है, बेंड हो रही है ना इसके कारण। यस सर। बीम क्योंकि रिजिड भी है तो इसका मतलब जब मैं ऐसे लोड लगा दे रहा हूँ, मैं आप खड़े हुए तो नहीं, मैं खड़ा हो गया, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे करके शेयर ऑफ भी कर जाए। यस सर। ठीक है ना, ऐसे करके शेयर ऑफ भी कर जाए। तो ये क्यों होगा? क्योंकि बीम आपकी ऑफसेट है और वो क्या कहते हैं बेंड कर रही है, और ये है क्योंकि हैवी लोड एक जगह है, उसको इधर से सपोर्ट लग रहा है, तो आपका शेयर ऑफ पॉसिबिलिटी है टूट जाए। तो यही दो फिनोमेना होते हैं, वन इज बेंडिंग, अनदर वन इज शेयर फोर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि शेयर फोर्स एक F यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लग रहा होगा। अब मान लीजिए F2 शेयर फोर्स लग रहा होगा ना? यस सर। और लोड लगने के बाद भी ये बीम बेंड कर रही है, क्योंकि बेटा एक मैं आपको बता दूं कि जितना भी हम एनालिसिस करते हैं, मशीन डिजाइन जो भी है, हम हमेशा मान के चलते हैं कि
कि my component is loaded within elastic limit. आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है कभी कि नहीं? Yes sir. पढ़ा है. Elastic strain is that strain इसकी लोड जैसे ही हटाएंगे रिकवर हो जाएगा. मैं इस पेन को पकड़ के खींच रहा हूँ, this pen is under elastic strain, है ना? ये elastic strain में, this is the strain which you cannot see through your naked eyes. और जैसे मैंने लोड रिलीज किया, ये रिकवर करके आपको पता भी नहीं चला. So that type of deformation I am talking about. लेकिन अगर मैं वो लोड लगा दूं कि इसकी लेंथ ही बढ़ जाए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, हम उसमें स्टडी नहीं करते. हम ये मान लेते हैं कि हमारा लोड ऐसा है कि ये डिफॉर्मेशन बहुत हल्का हो रहा है. ठीक है ना? तो यानी कि लोड लगाने के बाद भी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? Yes sir है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि कटिंग प्लेन से हम क्या करते हैं, हम इसको अलग कर लेते हैं. हमें कहते हैं ये बीम का ये पार्ट हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे शेयर फोर्स है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, और इधर से हमने ये कर दिया, ये P है, यहाँ पे P/2 है, और हमारा ये शेयर फोर्स हमने डेलिबरेटली इसको नीचे ले लिया. हम ऊपर भी ले सकते थे, डायरेक्शन को हमने शेयर फोर्स, क्योंकि इस फेस में नीचे, इस फेस ऊपर, और ये दोनों एक ही पॉइंट का है. हमने दोनों को अलग अलग कर लिया. Are you able to understand this? ये शेयर फोर्स इज एक्टिंग इन दिस प्लेन. अब इस पोर्शन के लिए सिंस इट इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या हुआ, F ये P/2 है ना, सो दिस इज आल्सो अपवर्ड्स, दिस इज आल्सो अपवर्ड्स, सो प्लस F1 प्लस P/2 इक्वल्स टू 0. यही हुआ. तो F1 क्या हो गया, F1 कम्स आउट टू बी माइनस P/2. इससे हमें क्या मालूम पड़ा, इससे हमें ये मालूम पड़ा कि सर कि जो इस यहाँ पे जब हम ले रहे हैं तो F1 का मैग्नीट्यूड तो P/2 के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए था, पलट जाएगा नीचे की तरफ. ठीक है, चलिए ये तो इसका हो गया. अब हम बात करते हैं इसकी. हमने देखा कि साहब इधर F2 है, इधर यहाँ पे ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब हो जाएगा ये प्लस F2 प्लस P माइनस P/2 इक्वल्स टू 0. तो F2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस P/2. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए था, अपवर्ड, और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. मैग्नीट्यूड इज कमिंग टू बी सेम. यस. सो एट ऑल द सेक्शंस आपका जो क्या कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम है, उसमें हमने क्या देखा कि हर एक सेक्शन पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू चाहे लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करो चाहे राइट हैंड साइड पे करो, इट विल बी सेम. इसका मतलब है किसी भी सेक्शन पे अगर मुझे शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है, प्लीज नोट दिस, if you want to find out shear force at any section throughout the length of the beam, what you have to do is you have to simply add the forces either on the right hand side or on the left hand side algebraically, that is by considering their sign. सर एक बार और रिपीट कर दीजिए. मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लो. To determine shear force in the beam, add all the forces acting at a particular section either on the right hand side or on the left hand side, and add them algebraically. Algebraically means by considering their signs. समझ आया? अरे बेटा मेरी समझ में आया? Yes sir. तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे भी शेयर फोर्स अगर फाइंड आउट करना है, तो या तो मैं बीम का ये पोर्शन कंसीडर करूं या फिर ये करूं, कोई एक ही करना है मुझे. और वहां पे मैंने उनके फोर्सेस का मुझे ऐड अप कर लेना है और उनके साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना. इधर का भी फोर्सेस करूंगा तो ये डाउनवर्ड मान लो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, उसके हिसाब से. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes sir. साइन कन्वेंशन इज समथिंग व्हिच इज डिजाइन्ड बाय यू. अगर मैंने किसी ने कह दिया था कि दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y, तो ये मैंने और आपने डिसाइड किया. ये किया ना यार? Yes sir. तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आना सिर्फ ये बताता है कि क्या साइन कन्वेंशन है. इसीलिए जो शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं. बुक्स में अलग अलग कंसिडरेशन होता है.
तो अगर आपको बेटा जब शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन लेना होता है तो मैं ऐसे करके एक सिंबल बना रहा हूं, उसको आप समझिए। मैं इसको कह रहा हूं आई टेक दिस एज पॉजिटिव, आई टेक दिस एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है ये, दैट इज एट एनी सेक्शन, ये सेक्शन लाइन कंसीडर, ये सेक्शन पॉइंट का इंडिकेशन है, ये सेक्शन लाइन का इंडिकेशन। आपको किसी सेक्शन पे अगर शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है तो आप उसको वहां पे अपने को खड़ा कर लो, और लेफ्ट साइड में जितनी फोर्सेस अपवर्ड्स हैं उनको आप पॉजिटिव मानो। अगर आप लेफ्ट साइड नहीं कंसीडर कर रहे हो, राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हो, तो राइट साइड में जितनी फोर्सेस डाउनवर्ड्स हैं उनको पॉजिटिव। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। क्योंकि आपको शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड बीम का कंसीडर करिए या राइट हैंड साइड कंसीडर करिए, और जब आप उनको ऐड करिए तो उनके साइन को ध्यान में रख के ऐड करिए। यही तो मैंने कहा है बस। अलग अलग बुक में अलग है, मैं ये साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूं। मैं क्या करता हूं, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी अपवर्ड्स है वो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में जितनी है वो पॉजिटिव। इसीलिए जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मेरा डायग्राम अगर ऊपर आ रहा है तो किसी बुक में नीचे आ रहा है, क्योंकि वो इसको नेगेटिव मान रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? नहीं समझ में आया? लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं 20, 30, यस सर। 1, और let us say take it as 1, 1, and it is a simply supported beam. बीम के क्रॉस सेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन भी खींच देंगे तब भी हम बीम मान रहे हैं, क्योंकि बीम का हम वेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी तक। वेट कंसीडर करना होगा तो मिड स्पैन में उसका वेट नहीं आएगा। तो ये सिंपली सपोर्टेड है, तो इसका मतलब दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है ना? दिस इज वर्टिकल ए, वर्टिकल बी। ये समझ में आ गया? 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। ये बीम मेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस सर। अब मैं कहता हूं यार VA की वैल्यू कितनी है बताओ जरा यार। VA कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि नहीं? कितने लोग कर सकते हैं? सर 25 सर। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं कि ये VA और VB की वैल्यू कितने लोग नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं? यस सर। यस सर। तो VA की वैल्यू कितनी आ रही है? 25, 25 तो नहीं आएगी यार। इसका मतलब नहीं कर सकते। सर एक मिनट, देखिए मैं बता रहा हूँ बेटा, 80/3। रुके रहो यार एक मिनट, मैं देख लूं। अब क्या बेटा, ये जो बीम है दिस इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये आपको मालूम है ना? यस और बीम जो हमको पढ़नी है दैट शुड बी स्टैटिकली डिटरमिनेट। इसका मतलब मेरे पास दो इक्वेशन है, समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। टू डायमेंशनल सिस्टम है, तो मैं समेशन ऑफ फोर्सेस अगर पहले लेता हूं, सो आई, हाँ एक मिनट देख लेता हूं। वर्टिकल आई टेक दिस एज पॉजिटिव x, दिस एज पॉजिटिव y, तो मैं कहता हूं समेशन ऑफ Fy यानी वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल में तो कोई है ही नहीं, तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, प्लस VA प्लस VB माइनस 20 माइनस 30 इक्वल टू 0। ये सब मानते हैं शिशु? यस सर। VA प्लस VB इक्वल टू 50, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन यूज करता हूँ, ये इक्वेशन यूज करके मूवमेंट अबाउट A, सो समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A विल बी इक्वल टू 0। एक मिनट यार, तो मूवमेंट अबाउट A ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हो जा रहा हूँ और मैं इसको दे रहा हूँ। आई टेक, लेट अस से आई टेक, साइन कन्वेंशन आपको बेटा मेंशन करना है, आई टेक क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव मूवमेंट, तो ये हो जाएगा प्लस 20 into 1 60 यस सर। प्लस 30 into 2 माइनस VB into 3। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई? 80/3। So VB is 80/3 and VA is 70/3 minus 60/3 70/3 हो गया यार ये? यस सर। So this is my beam
अब इसमें सारे अननोन सबको पता है. दिस इज 20, दिस 30 and this is A, B, C, D. This is 70/3. This is 80/3. अब let us say हम shear force find out कर रहे हैं. आप बताओ मैं कहाँ find out करें? बता दो किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? सर बी पे. बी पे. पहले आप बेटा किसी सेक्शन में फाइंड आउट कर लो, हम बी पे भी फाइंड आउट करेंगे. सर बीसी के मिड में. पहले हम सेक्शन लेते हैं कि 1 सेक्शन इज बिटवीन बी एंड सी. तो ठीक है ना. अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे खड़े हो गए. हमने कहा कि हमको मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है. फिर मेरे को आया कि सर ने एक चीज और बताई है कि वी शुड फर्स्ट स्टेट व्हाट इज द साइन कन्वेंशन. तो आपको मेंशन करना है व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स. तो साइन कन्वेंशन क्या है सर का? ये कि सेक्शन अगर आप बना रहे हो तो उसके लेफ्ट साइड में जितनी फोर्सेस पॉजिटिव, राइट साइड में जितनी नीचे पॉजिटिव, ये आपको पॉजिटिव है. या तो आप ये चूज करो या तो आप ये चूज करो. अब आप मुझे बताओ कि आप बीम का राइट हैंड साइड देखना चाहते हो कि लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड. Shear force at any section, choose only one side of about that section. मेरा ये कहना है to find shear force at any section, choose CHOOSE, choose only one side about that section. तो आपने कहा कि हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, तो उसका मतलब है हमें राइट साइड को भूल जाना है. Are you able to understand this? Yes. So you have chosen the left side. लेफ्ट साइड में क्या है कि जितनी फोर्सेस अपवर्ड्स हैं वो दोज आर पॉजिटिव. ये ध्यान रखना. तो हमारा लेफ्ट साइड में जो शेयर फोर्स आ जाएगा बिटवीन बी एंड सी, ये 1 सेक्शन पे है, तो मैं F11 कह रहा हूँ. F11 विल बी इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो गया तो प्लस 70/3. ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. माइनस 20 -20 to 1. माइनस कितना आ रहा है? 10/3. 10/3. So shear force at this point is plus 10/3. अब तुम राइट हैंड साइड देखो. राइट हैंड साइड में अब इसका मतलब इधर भूल जाओ, ये देखो सिर्फ. तो इधर क्या हो जाएगा? जितना डाउनवर्ड्स है वो पॉजिटिव, अपवर्ड वाली नेगेटिव. तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? F11 विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड वाला इज पॉजिटिव यानी प्लस 30 माइनस 80/3. तो कितना आ रहा है? 10/3. 10/3. Plus 10/3. सेम आ गया. Yes. तो आप यानी कि अगर मुझे shear force दिखानी हुई तो यहाँ पे मैं ऐसे और ऐसे दिखाऊं. समझ आ रहा है आपको? Yes sir. तो इस तरह आपको हर एक सेक्शन का shear force फाइंड करना है. अब हम बात करते हैं कि एट बी. थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा. ए बी सी डी. एट बी जब हम आते हैं तो बी पे क्या है? देयर इज इटसेल्फ अ फोर्स एक्टिंग. समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो आप उस केस में क्या करते हो? आप जो भी पोर्शन कंसीडर करते हो, अगर आप लेफ्ट कंसीडर कर रहे हो या राइट कंसीडर कर रहे हो, तो आपको एट पॉइंट बी दिखाना पड़ता है. एट पॉइंट बी just to the left of B, just to the right of B. दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. Are you able to understand this? बेटा Yes, sir. ये आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. एक तो जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड जस्ट टू द राइट ऑफ बी. जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी? प्लस 70/3 यानी है ना यार? Yes sir. जस्ट टू द राइट ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 10/3. 20 - 70/3. अरे एक मिनट.
ठीक है, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे एट बी, तो एट बी हो क्या रहा है, शेयर फोर्स की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 70/3 से 10/3 आ रही है, कहां से कहां चेंज हो रही है, 7. so what is the change of the shear force value over here, 20. 20. So whenever there is a direct load acting, वहां पे उस लोड की वैल्यू के बराबर a shear force will change. तो इस बीम के जस्ट लेफ्ट में एक हायर वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही लोड लगा वो वैल्यू रिड्यूस होके कहां तक पहुंची, 10/3. Are you understand this? So this is a very important observation. Shear force जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, wherever there is a point load, there is always a change of a shear force, the magnitude of that point load. अगर आप इस बीम में भी ध्यान से देखें, बीम के लेफ्ट में क्या लोड क्या जीरो है. Are you able to understand this? Yes, sir. तो जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम विल हैव टू स्टार्ट, क्योंकि बीम जो डायग्राम होगा वो एडी के बीच में होगा, इस लेंथ के अलोंग प्लेट करेंगे. तो हम जब ए से स्टार्ट करेंगे, द शेयर फोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम व्हिच वैल्यू, जीरो वैल्यू. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. और जीरो से सडनली कितना राइज करेगा, 70/3, और फिर इंटायर ए बी लेंथ तक कितना रहेगा, 70/3, और जैसे ही बी पे पहुंचेगा 70/3 विल रिड्यूस बाय 20 अमाउंट, और वैल्यू पहुंचेगी कहां तक, 10/3. Are you able to understand this? फिर ये बी और सी के बीच में कितना रहेगा, 10/3, एंड सो ऑन. आगे आप बढ़ते चले जाओगे ऐसे ही. Are you able to understand this? Yes, sir. So, अब आप बेटा दो चीजें अपना करना. एक तो आप रिएक्शंस फाइंड आउट करना, मैं उसकी प्रॉब्लम दूंगा आपको. रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करना है अलग अलग कंडीशंस में, सिर्फ रिएक्शंस फाइंड आउट करना, ये आप देख लेना. और आप शेयर फोर्स फाइंड आउट करना, इनकी प्रॉब्लम्स आप देखिएगा नेक्स्ट. मैंने जो ये बताया, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप, और मैं आपको बता दूं अभी तक मैंने एज ऑफ नाउ मैंने जो देखा है, लोग इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है तब भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मैं इसको आगे बढ़ूं बेटा, ये आप करिएगा इनको. और बेटा जो मैं आपको प्रॉब्लम्स देता हूं उसको क्लास के पहले तक सबमिट किया करिए. आपको बहुत टाइम रहता है, एक वीक, या नहीं करना है तो मैं फिर उसके आगे कंसीडर नहीं करूंगा. I'll be evaluating according to my wisdom. ठीक है ना, मैं बार बार एक चीज को नहीं कह सकता, बिकॉज आप बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए. Now let us consider a beam जो है उसपे हमारा यूडियल है. यूडियल मतलब रेक्टेंगुलर लोड है. अच्छा, मैं ये बी में ए बी है, सिंपली सपोर्टेड है, वर्टिकल रिएक्शन एट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट बी, और इसका रेट ऑफ लोडिंग है डब्ल्यू. डब्ल्यू मींस इसकी यूनिट क्या होगी, से न्यूटन पर मीटर. से फॉर अ मीटर लेंथ न्यूटन लोड इज अप्लाइड, डब्ल्यू न्यूटन लोड इज अप्लाइड. अच्छा, इसको कई बार जो मैं सिंबल शो करता हूं ना, कई बार मैं जल्दबाजी में ऐसे भी बना देता हूं. अगर मैंने ऐसे भी बनाया है ना, यू कंसीडर दिस टू बी अ रेक्टेंगुलर लोड. Are you able to understand this? बेटा इस समझ में आया? सर स्क्रीन बड़ी ब्लर आ रही है सर. ब्लर आ रही है? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. अच्छा, चलो बेटा फिर, चलो कोई बात नहीं, फिर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको. ठीक है, क्योंकि मैं अभी लॉगिन करूंगा तो फिर टाइम हो गया है. Okay, sir. किसी को कुछ कहना है बेटा? सर ये टेक्स्ट कर दीजिएगा सर आगे. तो हाँ, तो ये टेक्स्ट, ये जो मैंने अभी तक ये जो कैलकुलेट कराया था, ये समझ में आया था कि नहीं बेटा? यस सर. ये भी ब्लर तो नहीं रह गया? नो सर.